Hello, my dear students. I welcome you all to your Vedanta Accountancy class. This is Riddhi Sikri, your accountancy master teacher, and I welcome you all to Maharathi Batch free YouTube series where we are going to complete all the chapters in this channel only. Right? Yes, जी हाँ, बिल्कुल. तो चलिए जी आज का सेशन करते हैं शुरू. I welcome you all to अकाउंटेंसी क्लास ऑफ वेदांत कॉमर्स. एंड बेटा जी आज करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट बातें कौन सी इंपॉर्टेंट बातें मैम? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो है बेटा जी आज डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है हमारे पास ऐसी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो कि हमें इनिशियली पता होनी चाहिए. कौन से इनिशियली मैम? when we are starting our journey of accountancy or our journey of commerce. तो सबसे पहले कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स जो कि हमें बिल्कुल बिल्कुल पता होने चाहिए. So that is what we are going to cover in this session, right? So the basic accounting terms, beta, in accounting the words are different, right? Before knowing accounting, the word capital might mean different for you. What drawings they might mean different for you. Dr. dot might mean doctor for you. Cr. dot might mean anything else for you. But now it will be debit, it will be credit. So in accounting, in commerce, bit of change will be there in the meaning of some words. So those words, those terminologies we are going to discuss today, which we should know before starting any practical chapter or even any theoretical chapter. Even before knowing accounting principles, we have to know these accounting terms. So our very first accounting term is proprietor, or you can call it owner. So the person who is running the business, right, who is the owner of the business, we call him or her proprietor, or sole proprietor as well, right? The person who takes the initiative to start the business, invests his money or money worth, and bears the risk of the business is called as proprietor. So right, basically जो भी owner है, the person who is starting the business, the person who is going to own the business, the person who is going to invest money is the business, the person who is going to run the whole story of this business, that is called as proprietor, sole proprietor, or you call it owner, right? So the person who is the owner of the business, that is a proprietor, right? That is called as owner और प्रोप्राइटर इन अकाउंटिंग. मैम बाहर भी ऐसे ही बोलते हैं, अच्छी बात है फिर तो. ठीक है जी. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड विच इज कैपिटल. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड बेटा, कैपिटल. एंड दिस वर्ड विल बी यूज्ड इन योर होल अकाउंटिंग. जहां भी जो भी अकाउंटिंग पढ़ोगे ना, ये वर्ड आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला. So right, the money invested by the owner in the firm is known as capital. Whatever money owner is investing into the business, right? मैम कैपिटल का मतलब तो डेली नहीं होता था. हाँ, कैपिटल का मतलब डेली होता था, होता है, बट कैपिटल का मतलब इन्वेस्टमेंट भी होता है बेटा. So the money which is invested by the owner into the business, that is called as capital. It may be bought in the form of cash or assets by owner. So basically what they are saying, whether the owner is bringing cash into the business, or if the owner is bringing any stock into the business, or if owner is bringing any assets into the business, all these things will be called as capital. Right, all these things will be called as capital. Whatever owner is bringing, whether it be cash, whether it be stock, whether it be assets, it will be considered as capital only. जो भी चीज ओनर लेकर आया बिजनेस में, चाहे वो पैसा हो, स्टॉक हो, एसेट्स हो, वो सब कैपिटल कहलाता है बेटा. Right? If owner brings any money, if owner brings any stock, if owner brings any assets, अपने घर से अपना कोई एसेट लगा दिया बिजनेस में, फॉर एग्जाम्पल अपना जो कार है उसने बिजनेस में लगा दिया बिजनेस यूज के लिए, तो वो फिर अब एसेट जो है वो कैपिटल बन जाएगा बिजनेस का. राइट? सो वो क्या हो जाता है बेटा? कैपिटल. वी कॉल इट कैपिटल. एंड अब इसका रिवर्स क्या होगा बेटा? विड्रॉवल. राइट? नाउ इफ ओनर विड्रॉज एनी मनी, the money or goods are both withdrawn by owner. If owner is withdrawing any money, any goods, any assets from the business, that will be called as drawings. Right? Purchase of car for wife by withdrawing money from the business. अब owner ने क्या किया?
अपनी वाइफ को कार दिला दी बिजनेस के पैसों से, तो मैम वो फिर कहाँ से पैसे लेगा? हाँ, तो अगर ले रहा है तो उसको आप ड्रॉइंग्स ही बोलोगे। जैसे बेटा आप लोगों ने देखा होगा जिन जिन लोग का बिजनेस है किसी चीज़ का, जिन लोग का शॉप है किसी चीज़ का, या फिर जिन लोगों का ये चिप्स वगैरह का शॉप रहता है, उनके बच्चे जब देखो चिप्स विप्स खाते रहते हैं, लगे रहते हैं भाई बढ़िया। जब जाओ उनको कुछ खरीदने जाओ या कुछ लेने जाओ, तो वो उस टाइम चिप्स विप्स कुछ लगे होते हैं खाने पीने में, है ना? तो वो ऐसे ही वो अपनी ड्रॉइंग्स करते रहते हैं रोज थोड़ी थोड़ी। तो इफ द ओनर इज विड्रॉइंग एनी कैश, एनी स्टॉक, है ना, जैसे मैंने तुम लोग को बताया कि स्टॉक चिप्स विप्स, जिनका चिप्स विप्स का शॉप है वो रोज ही एक आधा पैकेट तो खा ही जाते हैं, है ना। एसेट्स, और अगर हमने अपने बिजनेस का कोई एसेट ले जाकर घर पे यूज करना स्टार्ट कर दिया, है ना, अब मान लो कि बिजनेस में शॉप में 2-4 एसी एक्स्ट्रा थे, तो एक एसी उठा के घर ले गए, so that is also drawings. So anything, whether it be cash, whether it be stock, whether it be assets, if it is withdrawn by the owner for personal use, it will be called as drawings, right? So abhi dekho ji, proprietor is the person who is going to own the business. If he invests any money, stock or assets, that is called as capital. If he withdraws any cash, stock or assets, that is called as drawings. ठीक है जी, तो 3 अभी अकाउंटिंग टर्म्स हमने जान ली। Next is the most again important term, which is assets, which you all must have heard earlier as well. कि assets क्या होते हैं? जब भी किसी कंपनी में जाते हैं तो बोलते हैं कि आई एम एन एसेट फॉर यू। तो एसेट का क्या मतलब है? आई एम एन रिसोर्स फॉर यू, राइट? व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स? लेट्स अंडरस्टैंड दैट. Assets are valuable and economic resources of an enterprise useful in its operations. Assets can be broadly classified as current assets, non-current assets. So assets are the valuable economic resources. Any resource which is benefiting you or which is going to benefit you, that is asset. कोई भी ऐसा रिसोर्स जो आज की तारीख में हमें बेनिफिट देता हो, आगे जाकर बेनिफिट देगा, और हमने उसको ओन किया है। ओन करना पड़ेगा बेटा उसको, है ना। अगर वो मेरा है, साथ के साथ मुझे कोई बेनिफिट वो चीज दे रही है, तो वो एसेट कहलाएगा, है ना। आई शुड ओन दैट, है ना। अगर मान लो कि मैंने किसी से लैपटॉप लिया, है ना, कि मैंने कहा मुझे ना अपना आप लैपटॉप दे दो, मुझे थोड़ा कुछ काम करना है। अब मैंने लैपटॉप लेके उसमें से कुछ अर्निंग शुरू कर दी, तो विल यू कॉल दैट लैपटॉप माई एसेट? वो मुझे बेनिफिट जरूर दे रहा है बेटा, दैट लैपटॉप इज गिविंग मी बेनिफिट, but it is not owned by me, so I cannot call it my asset unless resource is owned by me, that cannot be considered as my asset. So everything which is owned by me and giving me benefit, that is asset, है ना। जैसे मान लो ये माउस हो गया, ये मेरा एसेट हो गया, ठीक है जी। ये पेन हो गया, ये एसेट हो गया, विच इज ओन्ड बाय मी, जो मेरा यूज भी कर रही हूँ, मुझे बेनिफिट भी दे रहा है और ओन्ड बाय मी भी है, राइट। सो दैट थिंग इज माय एसेट. So assets are further divided into 2 parts, current assets and non-current assets. बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है जी। 2 टाइप है। तो देखो जी, 2 टाइप में क्या होता है? current assets are those assets which are held for short period. अब current assets are 2 types of assets जो आपने एक छोटे समय के लिए आपके पास रहेंगे और आपको छोटे पीरियड में ही फायदा दे जाएंगे, राइट। करंट एसेट्स में बेटा करंट रहता है, करंट रहता है हर टाइम कि जल्दी जल्दी ले लो बेनिफिट, जो लेना है फिर मैं जा रहा हूँ, right, and can be converted into cash within 1 year. So basically the assets which benefit me in a period of 12 month, है ना, जो मुझे कम से कम 12 मंथ्स के पीरियड में बेनिफिट दे जाते हैं, वो होते हैं मेरे करंट एसेट्स। जैसे कि डेटर्स हो गए। अब डेटर्स का क्या मतलब है, स्टॉक का क्या मतलब है, दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस सेशन ओनली, बट फिर इसके दोबारा डिस्कस कर लेंगे, राइट। सो ऐसी चीजें बेटा, ऐसे एसेट्स जो मुझे 1 ईयर के लिए ही बेनिफिट देते हैं। इसके अलावा एक एग्जांपल ले सकते हो आप स्टेशनरी का। अब स्टेशनरी तो बेटा रोज एक स्टेशनरी स्कूल में खो के आते हो कि नहीं? आते हैं मैम, हमें तो बिल्कुल बेटा, जब स्कूल जाती थी ना तो एक इरेजर या एक पेंसिल तो हमेशा रह ही जाता था। रोज इमेजिन नहीं करोगे कि रोज कुछ ना कुछ खोकर आना ही है। So current assets means the assets which are going to benefit you for a period which is less than 12 months, right? Example हो गई जी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, है ना। कैश और कैश के समान जो भी चीजें हैं, किसी से हमें पैसा आना है, अकाउंट्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस जिसका हमने मनी पे कर दिया है, बेनिफिट आना बाकी है। रॉ मटेरियल्स बन के तैयार हो जाएंगे इसी टाइम में, 12 महीने में ही रेडी कर दोगे तो रॉ मटेरियल्स हो गए। इन्वेंट्री हो गई, है ना। इन्वेंट्री का मतलब भी समझेंगे। बेसिकली इन्वेंट्री आपका स्टॉक, इन्वेंट्री, बोथ आर द सेम वर्ड्स हियर।
सो विल अंडरस्टैंड देम. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर मैंने कहीं पे शॉर्ट पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है तो वहां से भी बेनिफिट मुझे वापस 12 मंथ्स के अंदर आ जाएगा, है ना. जितनी भी शॉर्ट टर्म चीजें होती है ना बेटा अकाउंट में, शॉर्ट टर्म, करंट, ये सारी चीजें होती है 12 मंथ्स की. तो करंट एसेट्स को हम और क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट टर्म एसेट्स. करंट एसेट्स आर ऑल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म एसेट्स, राइट. सो जितने भी शॉर्ट टर्म की चीजें होंगी दे आर गोइंग टू कवर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स. 12 महीने में फायदा दे दिया तो ठीक है, नहीं तो आपको हम बोलेंगे नॉन करंट एसेट्स. सो नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर होल्डेड फॉर लॉन्ग पीरियड, जो आपके पास लंबे समय तक रहने वाले. लंबे समय अकाउंट्स में क्या माना जाता है, पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स, राइट. मोर देन 12 मंथ्स और यू कैन से 1 ईयर से ज्यादा का समय जो लेता है हमारे पास या फिर बेनिफिट देने में takes a period which is more than 12 months, that is non-current assets. For example हो गया जी, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, है ना. लैंड है हमारे पास तो उसका बेनिफिट आप कितने सालों तक लोगे. बिल्डिंग है तो उसका बेनिफिट कितने ईयर्स तक लोगे. एक मशीनरी, आप बताओ, एक मशीनरी खरीदते हो, फ्रिज खरीदा, एसी खरीदा, है ना, कोई व्हीकल खरीदा, तो उसका एक ईयर में बेनिफिट लेके बस खत्म कर देते हो या फिर लेते हो 3-4 साल तक बेनिफिट, या फिर बस आज एक नया व्हीकल, कल एक नया व्हीकल, परसों एक नया व्हीकल, वाओ ऐसा चल रहा है. ऐसा चल रहा है तो बहुत बढ़िया बात है बेटा. फिर तो करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स आपके लिए अलग है. अदरवाइज इफ यू आर लिविंग अ नॉर्मल लाइफ तो करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स है कि जो चीजें आप एक लॉन्ग पीरियड तक यूज करने वाले हैं, है ना, जो चीजें आप एक लॉन्ग पीरियड तक बेनिफिट देने वाली हैं आपको और आपकी ओन्ड है, दे आर नॉन करंट एसेट्स. Further, non-current assets are classified into tangible and intangible assets. So, अब जो भी assets ऐसे हैं which can be seen and which can be touched, जिन assets को हम touch कर सकते हैं और देख सकते हैं, वो होते हैं बेटा जी tangible assets, like furniture, machinery, है ना. Intangible assets हो गए जो हमें benefit तो देते हैं, the assets which are giving us benefit but cannot be touched nor seen. Wow, example goodwill. अब जैसे एक फर्म की गुडविल है ना, एक फर्म की गुडविल है, उसका नाम है, वो अपने नेम की वजह से पैसा कमाती है ना, अपने गुड नेम की वजह से पैसा कमाती है. तो अगर मैं इस गुडविल को ऐसे टच कर दूं तो ये टच हो जाएगी? नहीं. गुडविल एक नाम है जिसकी वजह से आप एक्स्ट्रा अर्निंग कर रहे हो. सो दीज आर एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी टच्ड बट स्टिल दे हैव वैल्यू एंड स्टिल दे प्रोवाइड बेनिफिट्स टू द फर्म, है ना. फर्म को बहुत अच्छा बेनिफिट देगी. अब गुडविल बेटा आप लोग के 12th में एक चैप्टर आएगा जिसमें आप जानोगे कि गुडविल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, राइट. तो ये हो जाते हैं आपके इंटेंजिबल एसेट्स. तो करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स दे आर पार्ट्स ऑफ एसेट्स. सो बेसिकली वी अंडरस्टूड assets they are classified into two parts, non current assets, current assets, और non current assets they are further classified into tangible, intangible. तो ये थी बेटा एसेट्स की कहानी. लो जी, अब आ गया सबसे बढ़िया टॉपिक, डेटर्स और क्रेडिटर्स का. these all words are super important guys, right? These all words are super important. So let's understand debtors. So debtors means the person from whom amounts are due for goods or services. Basically the person who owes us, right? Who owes us, जिससे हमारा पैसा आना है, right? जिससे हमारा पैसा आना है, इसको बोल सकते हो आप देनदार. जिसने हमें पेमेंट करनी है, जिसको हमने गुड्स बेच दिया था उधार पे, है ना. सो द पर्सन हु ओज अस मनी, द पर्सन फ्रॉम हुम अमाउंट्स आर ड्यू फॉर गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड in respect of contractual obligation is called as debtor. Sundry debtors, if you have small debtors, you are going to combine them and you will call them sundry debtors, right? Total amount which is due, जितना पैसा हमारा आता है, आना होता है, उसको हम book debts बोलते हैं. और total trade receivable word covers debtors and bills receivable. So basically debtor word means the money which is due from any other party, है ना, that this person owes us some money, that person is called as debtor of the business. जिससे भी हमारा पैसा अभी आना हो, okay, that is debtor of the business, right? हाँ, debtor is the person or body, any other form of party in a transaction which owes money to the other party, right? तो अब creditor क्या हो गया? Creditor means the person to whom we have to pay money, है ना, जिसको हमने अभी पेमेंट करना है. To whom amount is owed by enterprise, right? To whom we have to pay, right? To whom we have to pay. अब we कौन है यहाँ पे? हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, right?
हाँ, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से वी आर assuming all these things. To whom we owe some money, that is creditor. That means लेनदार, जिसने हमसे पैसा लेना हो. Right? The person whom amount is owned by the enterprise on account of goods, services sold or rendered in respect of contractual obligation is called as creditors. जिससे हमने कभी goods, we have purchased goods from that person on credit. Right? So we owe the money to that person, right? So that is called as creditors. Sundry creditors, अगर छोटे छोटे creditors को मिला के बना दो तो sundry creditors. The word receivables है ना, the word bills payable है ना, the word trade payable आएगा बेटा यहाँ पे. The word trade payable या फिर आप पेबल वर्ड खाली ले लो ना, अगर तो खाली पेबल वर्ड का भी मतलब क्या होता है, इंक्लूड्स डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल है ना, डेटर्स प्लस बिल्स पेबल एक्चुअली. ठीक है जी. तो ये हो गए हमारे डेटर्स क्रेडिटर्स. डेटर्स टू हुम फ्रॉम हुम वी हैव टू रिसीव मनी एंड क्रेडिटर्स टू हुम वी हैव टू पे मनी. Right? So these are the two important words, debtors and creditors. You know, same thing we have understood. Next comes liabilities. Liability means the debt on your head. The money which is to be paid. जो पैसा पे करना है हमने कौन, बिजनेस ने. An amount owing by one person to another person, payable in money, goods or services. So anything which is to be rendered, which is to be delivered, which is to be paid, that is liability. Any debt on your head, किसी का पैसा देना है, किसी ने हमको पैसा दे दिया, हमने उनको गुड्स डिलीवरी करनी है, किसी ने हमको पैसा दे दिया, उसको हमने सर्विसेज अभी देनी है, तो वो क्या हो जाता है बेटा, लाइबिलिटीज. दैट डेट ऑन योर हेड. यू हैव earned the money, you have to give your services, you have to give the goods. या फिर किसी को हमने उससे गुड्स खरीद लिया, उसको हमने पैसा देना है. तो लाइबिलिटीज का मतलब क्या हो गया कि जितना भी उधार है ना, जितना भी डेट है ऑन योर हेड, दैट इज लाइबिलिटी. Of course, let's come to the types of liabilities. We have current liabilities and non-current liabilities. Current liabilities are the liabilities which are to be paid in a period of 1 year. एक साल के अंदर पेमेंट करनी है जिस चीज की, वो है करंट लाइबिलिटी. और द लाइबिलिटीज विच कैन बी पेड फॉर अ पीरियड मोर देन 1 year, that is non-current. Current liabilities also called as short-term liabilities. Non-current liabilities also called as long-term liabilities. Yes. ठीक है जी. एग्जाम्पल्स वी कैन सी दैट नॉन करंट लाइबिलिटीज जैसे जो जल्दी पे करनी रहेंगी है ना, वो कौन सी है आपकी, अकाउंट्स पेबल, किसी का पैसा देना तो जल्दी दोगे. बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक का कोई पैसा रुका हुआ है, जल्दी से दोगे. शॉर्ट टर्म लोन्स, करंट पोर्शन, अक्रूड एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें जल्दी पे करनी पड़ती हैं. अक्रूड एक्सपेंसेस, अक्रूड वर्ड यू विल अंडरस्टैंड इन योर अकाउंटिंग इक्वेशन. ठीक है जी. बैंक लोन्स, बैंक लोन्स यू कैन पे इन अ पीरियड मोर देन 1 year. मॉर्टगेजेस है ना, मॉर्टगेजेस का मतलब होता है गिरवी रखवाना, उसके बदले बाद में पैसा देंगे है ना, तो टाइप ऑफ लोन ही है. तो ये भी आप यू कैन टेक अ पीरियड फॉर मोर देन 1 year. लोन फ्रॉम फंडिंग एजेंसीज, कोई फंड उठाया है तो दैट ऑल्सो कैन बी पेड फॉर अ पीरियड मोर देन ईयर. एंड अदर लॉन्ग टर्म लोन्स, और कोई अगर हमने लॉन्ग टर्म लोन लिया है तो. राइट. इसके अलावा बेटा हमारे पास क्या आ जाते हैं, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज. कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज दे डिपेंड ऑन सिचुएशंस एंड कंडीशंस. कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी इज अ सिचुएशन which may happen or may not happen depending on a situation. Like ma'am, like बेटा that sometimes you plan ना that कि कल मैं स्कूल जाऊंगा या जाऊंगी अगर मेरा फ्रेंड आएगा तो, है ना. तो अब आपका स्कूल जाना कल डिपेंड हो गया कि इफ माय फ्रेंड इज गोइंग टू कम देन आई एम गोइंग टू गो टू स्कूल, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू गो टू स्कूल. सो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन और कंडीशन ऑफ योर फ्रेंड. राइट. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज विच मे हैपन और मे नॉट हैपन डिपेंडिंग ऑन द फ्यूचर कंडीशन. राइट. कि अगर हमारे कोई केस चल रहा है हमारा कोर्ट में, तो कोर्ट का डिसीजन हमारे फेवर में भी आ सकता है और अगेंस्ट में भी आ सकता है. इफ द डिसीजन इज इन आवर फेवर देन वी आर गोइंग टू गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट, है ना. अगर हमारे अगेंस्ट आ गया तो वी विल हैव टू पे फॉर दैट. सो दिस लाइबिलिटी कैन अराइज डिपेंडिंग ऑन दैट सिचुएशन, है ना. ये देखो एग्जाम्पल्स आ गए. लॉ सूट, कोई केस चल रहा है, कोई हमने प्रोडक्ट का वारंटी दिया है. अब प्रोडक्ट के वारंटी में कभी कभार नुकसान भी हो जाता है
राइट, पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन और पेंडिंग केसेस, कोर्ट में कोई पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बैंक में कोई गारंटी दिया हुआ है हमने, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो गई, आपका प्रोडक्ट इस तरीके का था, उसके रिगार्डिंग कोई पॉलिसी निकल गई, तो हो जाएगा एकदम से धोखा। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज, अब फॉरेन एक्सचेंज में एकदम से चेंज आ गया है ना। लिक्विडेट डैमेजेस, कुछ आपके अनएक्सपेक्टेड नुकसान हो गए बंद करने के बिजनेस को, है ना, लिक्विडेट डैमेजेस, बंद करना पड़ गया बिजनेस, तो एकदम से उस टाइम पर कुछ डैमेजेस निकल कर आ गए। सो दीज आर लाइबिलिटीज विच मे डिपेंड ऑन, विच डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग. If this happens, then this liability is going to arise. If this is not going to happen, then there will be no liability. Okay, so this is the meaning of contingent liability. So assets means what you own and liabilities means what you have to pay, right? So now identify the assets and liabilities, right? Let's try to identify. Plant and machinery क्या होता है बेटा? Asset की liability. सोचो सोचो, गुडविल, सैलरी ड्यू, बैंक फ्रॉम लोन फ्रॉम बैंक, सोचो जी, टेक अ मिनट, पॉज द सेशन एंड देन डू इट, देन चेक इट लेटर. ओके, सो प्लांट एंड मशीनरी होता है एसेट, गुडविल एसेट, लाइबिलिटी लाइबिलिटी. ओके जी, सही है, हाँ इंटैंजिबल है, ठीक है जी. ओके, अब कैश इन हैंड, अनसोल्ड स्टॉक, बैंक ओवरड्राफ्ट, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड. अब ये करना 1 मिनट वीडियो को पॉज करके, ठीक है, और फिर चेक कर लेना नेक्स्ट स्लाइड से जो कि आ रही है, आ गई. नेक्स्ट वर्ड देखिए, गुड्स, राइट, गुड्स. सो गुड्स का क्या मीनिंग होता है बेटा? द गुड्स, द प्रोडक्ट्स इन विच वी आर डीलिंग एक्चुअली, है ना, जो भी हमारे बिजनेस का प्रोडक्ट है उसको गुड्स बोलते हैं. The goods which are brought and sold by business are called as goods. In accounting, when goods are purchased, it is written as purchases. When goods are sold, they are written as sales. So बेटा accounting का एक rule है, goods को goods नहीं लिखते. We don't write goods as goods in accounting. We write them either as purchases or sales. Why, ma'am? द रीजन बिहाइंड दिस इज कि अगर आप ये 2 वर्ड्स नहीं यूज करोगे और गुड्स ही यूज करते रहोगे तो पता कैसे चलेगा कि कब गुड्स खरीदे, कब गुड्स हमने सेल की, राइट? सो गुड्स के लिए वी यूज दीज वर्ड्स. इफ वी आर बाइंग गुड्स वी आर गोइंग टू मेंशन इट बाय द वर्ड परचेजेस एंड by the sales if we are selling goods. Purchases, if you are purchasing good, that is your expense. If you are selling good, that is your income. क्योंकि मनी आएगी ना, गुड्स बेचोगे तो पैसे आएंगे, राइट? Yes or no? So this is what is mentioned here. So goods means the product in which we are dealing with. And how are we going to mention these words in the, how we are going to mention this one word? By 2 words, purchases and sales. Purchases means, of course, the goods which we are purchasing. It can be for production, further production, or it can be for resale. ठीक है जी. साथ के साथ परचेजेस जो है कैश में भी ले सकते हो आप और कभी क्रेडिट में भी ले सकते हो, उधार भी ले सकते हो. अब परचेज रिटर्न क्या होता है? द गुड्स विच यू परचेज बट यू डिडंट लाइक और इट वाज नॉट एज पर योर रिक्वायरमेंट, सो यू आर गोइंग टू रिटर्न इट. सो इफ यू आर रिटर्निंग इट, दैट विल बी परचेज रिटर्न, राइट? Similarly, we have sales. Sales means the money, basically sales means the goods selling and उससे आप जो पैसा कमाओगे, ठीक है जी. अब सेल्स रिटर्न, जो गुड्स आपने बेचा था उस पर्सन ने या उस एंटिटी ने वापस कर दिया, so that is called as sale return, right? Simple words. Then we have a word discount. Discount you are going to understand widely in your journal chapter as well, but let's understand it right now as well. That discount is the rate given by the seller to the buyer. Discount तो बेटा आपने पक्का लिया होगा, है ना? डिस्काउंट के लिए मेहनत करी है कभी, बहुत बार्गेनिंग फिर भी ना मिला हो. मेरे साथ तो हुआ है कई बार कि कई बार डिस्काउंट, बहुत कोशिश करी कि डिस्काउंट मिल जाए, बहुत बार्गेनिंग करी कि नहीं 200 का लगा लो, 500 का लगा लो, फिर भी कोई देता नहीं है हमें, बार्गेनिंग पे डिस्काउंट नहीं मिलता. तो अब देखते हैं जी डिस्काउंट लेने के और कौन सी टेक्निक हो सकती है. निंजा टेक्निक आओ. सो निंजा टेक्निक टू गेट डिस्काउंट इज गेटिंग ट्रेड डिस्काउंट, राइट? सो ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है, क्यों मिलता है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट. The purpose of this discount is to persuade the buyer to buy more goods. So the story behind this is you want to convince the buyer to buy more goods. It is offered at an agreed percentage of list price at the time of selling goods. तो अगर आप एक अच्छा सा गुड बल्क में खरीद लियो ना, बेसिकली जब आप बल्क में खरीदते हो तब आपको यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है जी.
इस डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, छुपके दे देते हैं, ठीक है, सीधा ही अमाउंट में से डिडक्ट कर देते हैं, फिर फाइनल अमाउंट डिडक्ट करने के बाद ही बना देते हैं. अब कैश डिस्काउंट इज द डिस्काउंट विच इज गिवन ऑन द प्रॉम्प्ट पेमेंट. इफ यू आर पेइंग इमीडिएटली the owner is going to give you discount or the seller is going to give you discount. तो कभी कभार होता है ना कि कुछ ऐसे आ जाते हैं बायर्स, वो कहते हैं कि हम बाद में दे देंगे. आपको लगता है कि बाद में, लगता नहीं है कि ये मुझे पे कर सकता है या कर सकते हैं, इसका मूड बदल गया तो पता नहीं देना दे. तो फिर आप ऐसे टाइम पे क्या करते हो, आप सोचते हो कि इसको डिस्काउंट देते हैं, क्या पता डिस्काउंट की खुशी में अभी पूरी पेमेंट हो जाए. तो वो होता है कैश डिस्काउंट. द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग कैश डिस्काउंट इज टू एनकरेज द डेटर्स टू पे प्रॉम्प्टली, कि जल्दी से पेमेंट दे दो, हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, आप बाद में मत करो, है ना, बाद में मत टालो, फ्यूचर पे मत टालो, अभी कर दो बस पेमेंट जैसे तैसे. तो तब मिल जाता है कैश डिस्काउंट, राइट. These two discounts, of course, important, trade discount and cash discount. Now let's understand some small words, the meaning of word account. Account, बेटा account small word है, पर लेकिन पूरा account से आपका account चलने वाला है ना, ऐसे लगा दोगे तो आपका subject बन जाएगा. बट हेयर अकाउंट रेफर्स टू अ समराइज्ड रिकॉर्ड, है ना, एक फॉर्मेट जिसमें आप सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करोगे. फॉर्मेट आप लोग समझोगे अभी, है ना, कुछ इस तरीके के आपके फॉर्मेट होंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, इस तरीके के फॉर्मेट होंगे, है ना. और यहाँ पे आप डेबिट लगाओगे, यहाँ पर इस साइड पर क्रेडिट लगाओगे, राइट. सो ये हो जाते हैं आपका एक प्रॉपर टेबल जिसमें यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड, समराइज द रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल ना. हाँ, तो इसको एक हेड मिलेगा कि क्या चीज़ हमने इसके अंदर रिकॉर्ड करी. इनकम ऑफ कोर्स इज अ वाइडर टर्म विच इंक्लूड्स प्रॉफिट ऑल्सो. इनकम यहाँ पर एक बड़ा टर्म है जो प्रॉफिट को भी कवर करता है. इनकम मीन्स इंक्रीज इन वेल्थ ऑफ एंटरप्राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो बेसिकली जो इनकम आप मीनिंग जानते हो वही है, जितना भी टोटल हमने अर्न किया है प्रॉफिट को इंक्लूड करके, है ना, सेल्स, जितनी सेल्स है बेसिकली उसको इंक्लूड करके, प्रॉफिट को भी इंक्लूड करते हैं, उसको इन टोटल इनकम कहते हैं. अब बेटा यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड स्टॉक एंड गुड्स, है ना. स्टॉक इज अ वाइड वर्ड, गुड्स वो है जो हम इस ईयर में यूज करने वाले हैं, गुड्स वो है जिसको हम बेचेंगे, खरीदेंगे, वो गुड्स हो गया. स्टॉक इज अ वाइड वर्ड, स्टॉक कवर्स रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल जितना पड़ा है वो स्टॉक में आएगा. इन प्रोग्रेस, जो भी मशीन्स के अंदर अभी प्रोग्रेस हो रही है रॉ मटेरियल्स पे, वो भी वर्ड स्टॉक कवर करेगा, है ना. फिनिश्ड गुड्स भी स्टॉक कवर करेगा. तो स्टॉक इज अ वाइड वर्ड जो सारे टाइप ऑफ गुड्स कवर करता है, वेदर इट बी रॉ मटेरियल, इन प्रोग्रेस मटेरियल, है ना, फिनिश्ड गुड्स. तो स्टॉक एक आपका लॉन्ग टर्म एसेट हो जाता है. गुड्स आपके जो है वो परचेज सेल में डिवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है जी. सो गुड्स अवेलेबल विद द बिजनेस फॉर सेल, वेदर इट बी रॉ मटेरियल, प्रोग्रेस वाले गुड्स या फिर फिनिश्ड गुड्स, दे आर ऑल स्टॉक, ठीक है जी. नेक्स्ट इज कॉस्ट. ऑफ कोर्स द प्राइस, ऑफ कोर्स द कॉस्ट विच रेफर्स टू द, जितना भी हमने खर्चा किया है ना, जितना भी हमें खुद को पड़ा है वैल्यू गुड्स रेडी करने का. वाउचर मीन्स जो आपका एविडेंस होता है बेटा. अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने के लिए आपको एक प्रूफ रखना पड़ता है. तो प्रूफ हम कहाँ से लेते हैं, वाउचर्स से. ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन जब करेंगे वहां समझेंगे. जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स, राइट, जो कि लगता है जब भी सप्लाई होगा गुड्स का या सर्विसेज का. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ऑफ कोर्स एक इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है जी. रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब बेटा इनकम ही है ना. दीज आर द अमाउंट्स ऑफ द बिजनेस अर्नड बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कस्टमर्स, कॉल्ड एज सेल्स रेवेन्यू. तो जितना भी हमने सेल कर पैसा कमाया, दैट इज रेवेन्यू, राइट. अदर आइटम्स ऑफ रेवेन्यू हो सकती है कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, रेंट. तो जितनी भी अर्निंग है बेटा, एज यूजुअल, कोई इसमें नया वर्ड में, इस वर्ड में कोई न्यू नहीं है, जैसा आप इसको जानते हो ऑलरेडी वैसा ही रहेगा, कि जितना भी इनकम हमने सेल से या फिर और किसी भी तरीके से इनकम अर्न किया है तो वो हमारा रेवेन्यू हो जाता है. एक्सपेंडिचर विच यू ऑल नो वेरी वेल, जितना भी पैसा आप रोज खर्ची करते हो, दैट इज योर एक्सपेंडिचर. स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग अ लाइबिलिटी फॉर सम बेनिफिट. सो बेटा ये बिजनेस एक चीज का बहुत ध्यान रखता है कि जो भी पैसा हम स्पेंड करें उसमें बेनिफिट हो कुछ ना कुछ, है ना. हम लोगों की तरह नहीं कि ये मन किया तो चलो ये खरीद लिया, ये मन किया तो चलो ये. बिजनेस बहुत स्मार्टली काम करेंगे, है ना. बिजनेस के ओनर्स, बिजनेस के अकाउंटेंट्स बहुत स्मार्टली काम करेंगे कि जो भी खर्चा किया है, द मनी विच वी आर स्पेंडिंग, वी शुड गेट सम एलिजिबल बेनिफिट इन रिटर्न, है ना. अब ये नहीं कि जो शॉपिंग करने गए, लेने कुछ गए थे 10-15 चीजें और अलग से ले आए जो किसी काम की नहीं है, वो नहीं.
एक्सपेंडिचर जहां हम करेंगे उसके बदले में कुछ बेनिफिट का ध्यान रख के करेगा तो वो है बिजनेस, राइट? लाइक गिविंग सैलरीज, बाइंग गुड्स, है ना, बाइंग मशीनरी। तो सोच समझ के बेनिफिट के लिए हम जो खर्चा करते हैं उसको एक्सपेंडिचर बोला जाता है, राइट? Expenditures are further divided into two types of expenditures, the revenue expenditures and capital expenditures. जिनका बेनिफिट एक ईयर में खत्म हो जाता है बेटा वो हो गए आपके रेवेन्यू, जिनका बेनिफिट ईयर्स तक चलता है वो हो जाते हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो कि आप रोज चलते फिरते करते हो, जैसे आपके कन्वेंस के हो गए, खाने पीने के हो गए, घूमने फिरने के हो गए, तो वो आपके रेवेन्यू है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आप सोच समझ के करते हो कि ये तो मुझे बहुत ईयर्स तक बेनिफिट देगा, तो इसको सोच समझ के किया जाए। जैसे कि कार बाय करना, एक प्लानिंग होगी, फैमिली में सब बैठेंगे, डिसाइड करेंगे कि अच्छा कौन सी लेनी चाहिए, लैपटॉप कौन सा लिया जाए। जब आप एक बैठकर डिसाइड करते हो, है ना, तो समझ जाना कि ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की हो रही है प्लानिंग, कोई मोटा खर्चा आने वाला है। तो मोटा खर्चा यानी कि जिसमें आप सोच समझ के प्लानिंग करके स्पेंड कर रहे हो मनी, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। जहाँ पे पूरी फैमिली प्लानिंग चल रही है, आपसे भी पूछा जा रहा है कि अच्छा कौन सा लैपटॉप अच्छा होता है, कौन सा लेना चाहिए, इसमें ये फीचर होना चाहिए या ये होना चाहिए, कौन सी कार लें, तू बता बेटा, देख कर बता कि ऑनलाइन कितना प्राइस है। जब ऐसे डिस्कशन हो रहा हो तो बेटा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है जी, समझ जाना। अब जब भी तुम लोगों से पूछा जाए कि बुला के पूछा कि बताओ भाई ऑनलाइन चेक करके इसका प्राइस कितना है, हाँ ये वाला फ्रिज ले ले क्या नहीं ले ले, तो वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। सो लॉस, बिल्कुल जी बिल्कुल, लॉस क्या हो जाएगा जब हमारे खर्चे बड़े ज्यादा है, इनकम बड़ी कम, है ना। द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस, खर्चे ज्यादा इनकम कम, तो क्या निकल कर आएगा जी, लॉस। अब रिवर्स कर दो, if income is more, expenses are less, profit, right? Income is more, expenses are less, that is profit, ठीक है जी। तो these were all your accounting, basic accounting terms जो आपको फर्दर आगे चैप्टर्स के लिए बेसिकली रिक्वायर्ड है। और I know if some of these small terms they are not covered, they will be covered in particular chapter. So for starting the further chapters, these accounting terms you all should know very well, right? If you all want to know कि मैम ये वाला वर्ड तो बिल्कुल पता ही नहीं है, समझ ही नहीं आया, आपने भी नहीं कराया इस सेशन में, तो एक बार मुझे चैट में पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई यू ऑल कि अगर कोई भी ऐसा वर्ड है जो समझ में नहीं आ रहा, टिपिकल है और मिस हो गया है इस क्लास में, तो एक बार बता देना, ठीक है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की बातें होती हैं खत्म। दिस इज वेयर वी आर गोइंग टू एंड द सेशन ऑफ टुडेज क्लास, right? So yeah, that's all for today. I hope you all understood all the parts of the session and you all understood all the basic accounting terms. Next we are coming up with accounting principles. Complete this and be ready for that. And वो जब आ जाएगा तो I will attach the link in the description इसमें ही, कि इसके बाद सीधा आप लोग प्रिंसिपल्स पर पहुंच जाएं, है कि नहीं, बढ़िया। चलो फिर ठीक है जी, ठीक है। इससे पहले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हम लोग कर चुके हैं, यू ऑल कैन ऑल्सो वॉच दैट, एक बार उसको भी समझ लो कि अकाउंटिंग को समझा जाए उसमें कि अकाउंटिंग कौन है जी, क्यों पढ़े अकाउंटिंग, राइट? सो दिस इज दैट इज रिगार्डिंग दैट एंड दिस इज रिगार्डिंग दिस। सो ठीक है जी, आज के लिए रखते हैं इतना ही। And if you all are getting benefits from all these sessions and you all like these sessions and you all have fun in these sessions, और सारी बातें अगर समझ आ गई हैं तो फिर फटाफट से एक लाइक कर दो सेशन को और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए तुम लोगों को सबसे पहले पहुंचे नोटिफिकेशन, ठीक है जी। चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। I will be seeing you all in the next sessions, next classes with the most important topics. तब तक के लिए bye bye. Take care of yourselves.